नाउ हम लोग ने 2 कर लिए हैं, देयर आर रिमेनिंग 4 लेफ्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन। सो इट विल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट कवर्स द ऑर्गन फ्रॉम आइदर आउटसाइड और इनसाइड। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ओके, so we'll do with the screen sharing and let's go ahead with the chapter. Okay, now we are done till here. Yes, ये थोड़ा सा जो बाकी है वहां से करना शुरू करते हैं। Okay, now if you look at each and every picture of the epithelial tissue, you can find there is the fibrous membrane. यहाँ पे वो ग्रे कलर में तुम्हें दिख रहा है, या वो ग्रे कलर का fibrous membrane है. Even here you can find in grayish color the fibrous membrane. If you go to the third one, you can find यहाँ पे वो brownish color में है fibrous membrane. Okay, यहाँ पे ये तीन में you can see in the bluish color. Then you have yellowish and again end में तुम्हें वो grayish color में दिखेगा. So these are the fibrous membrane which is present below the epithelial tissue, which helps to separate the epithelial tissue from the underlying tissue. Okay, आगे बढ़ते हैं. We're going to start with the third layer जिसका नाम है glandular epithelium. Now the glandular epithelium is present in the inner layer of skin. Okay, so skin के अंदर के layer में you will find the glandular epithelium. Now how are they formed? They are the cells which contain vesicles packed with secretory material. Vesicle का मतलब होता है pouches, small pouches, जिसके अंदर क्या होता है? secretory material. What is the meaning of secretory material? जो कुछ ना कुछ secrete करता है, कुछ ना कुछ निकालता है. Okay, so this is said to be the glandular epithelium. If you look very clearly at the image, you will find out that ये एक pouch जैसा बन जाता है. So these are the pouches, the small you can say vesicles. इसको हम लोग small pouch बोलेंगे, जिसके अंदर greenish color का तुम्हें secretory material दिख रहा है. Okay, ये secretory material then बाहर release होगा skin के ऊपर, skin के surface पे secretory material release होगा. So again I'm repeating, this is the skin. The inner layer of the skin contains such type of vesicle, मतलब pouches, which contains secretory material, मतलब जो substance secrete होगा, बाहर निकलेगा. और ऐसे एपिथीलियम को हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम. ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम मतलब ग्लैंड्स. ओके, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा निकालता है, टीयर ग्लैंड टीयर निकालता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालता है. तो ये अलग अलग ग्लैंड्स जो है दे आर नथिंग बट ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम. ओके, वो उससे ही बने हैं, विच हेल्प्स टू रिलीज सिक्रेटरी मटीरियल. व्हाट आर सिक्रेटरी मटीरियल? जो वो बाहर निकालता है, जैसे सलाइवा है, टीयर्स है, स्वेट है, तो वो उसको प्रोड्यूस भी करता है सिक्रेटरी मटेरियल को, एंड देन वो उसको बाहर निकालता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन. I hope it is clear till here. So again, I'm repeating for the last time. Glandular epithelium contains vesicle, which are pouches, which is packed with secretory material. Okay, and the secretory material is released on the outer surface of the skin. So what is its function? Its function is secretion of sweat, oil. Oil का दूसरा नाम है sebum. So another name of oil is sebum, mucus, etc. on the skin. समझा? तो ये जो म्यूकस है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, इट इज प्रेजेंट इन द नेजल एरिया, तो वो भी निकालता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. So this is the structure, location and function of the glandular epithelium. Let's go ahead. The fourth one जिसका नाम है columnar epithelium. Look at the cells of columnar epithelium. You can see the cells are very tall. Okay, they are pillar like tall cells. अब इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं. द कॉलम लाइक टॉल सेल्स आर प्रेजेंट. अपर फ्री सरफेस बेड्स फोल्ड. अगर तुम उसके अपर सरफेस को देखोगे, बहुत सारे फोल्ड्स है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ये. ओके, विच इज मेड ऑफ दीज सेल्स एंड इट इज यूज फॉर अब्जॉर्प्शन. तो ये फोल्ड की जरूरत क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन. कैसे होगा वो आगे समझेगा. तो अगेन मैं समझा रही हूँ फिर से ये पार्ट. ओके, दीज आर द कॉलमनार सेल्स विच आर वेरी टॉल like pillar. These are tall cells, and these tall cells, they contain, the upper free end contains many folds which helps in absorption. कहाँ मिलता है ये? It is present in the intestinal area, inner surface of intestine. Inner surface का नाम है mucosa. Another name of inner surface of intestine is called as mucosa. So mucosa is the inner surface of intestine.
एंड दूसरा कहाँ मिलता है वो एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. So alimentary canal is a digestive system. So hence digestive system में अलग अलग जगह पे you can find the columnar epithelium. Okay, this is the location. Again, I'm repeating. Inner surface, that is mucosa of the intestine, the inner part of the intestine. And alimentary canal is nothing but the digestive system. Please write it down. अब इसका function क्या है? The function will be related to the organ जहाँ पे वो present है. अब वो अगर intestine में present है, then what is the function of intestine? There are two functions of intestine. एक वो digestion में help करता है और दूसरा वो digested food को absorb करता है. सी जहां पे भी वो ऑर्गन है उससे ही रिलेटेड वो टिश्यू का फंक्शन होगा. ओके, so hence over here the tissue is present in the intestine in the alimentary canal, that is digestive system. तो function somewhat ऐसा ही होगा. तो what is the function? First, it is the work of intestine is to help in digestion and second is to absorb the digested food. तो यही काम है हमारे columnar का भी. The columnar epithelium is going to secrete मतलब release digestive juices. ओके, जैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस निकालेगा डाइजेशन होगा और जैसे ही डाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स बनेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी कौन करेगा? कॉलमनर एपिथेलियम. सो इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, आई होप यहाँ तक फिर से क्लियर हो गया है. दिस इज अ टू फंक्शन. देयर आर टू फंक्शंस ऑफ कॉलमनर. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेकेंड इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये हुआ कॉलमनर. फिफ्थ वन यू हैव इज सीलिएटेड एपिथेलियम. इसका पूरा नाम है ciliated columnar epithelium. Why is it so? Because if you can see over here, even these are very, very long cells. So even these are columnar cells. Okay. But why are they called ciliated? Because इसके upper free surface में there are hair-like structure जिसको हम बोलते हैं cilia. Okay. So for example, if I'm drawing over here, ये है कॉलमनार बड़े बड़े सेल्स, उसके ऊपर के फ्री सरफेस में देर आर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीलिया. इसलिए इसका नाम हो गया सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. ओके, सो हेंस दीज आर कॉलमनार सेल्स और उसके अपर सरफेस में यू कैन फाइंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीलिया और इसलिए इसको हम लोग ने बोल दिया है सीलिएटेड एपिथेलियम या फिर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सीलिएटेड एपिथेलियम लिखा है तो तुम सिर्फ सीलिएटेड एपिथेलियम ही लिखो. अब ये कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है मोस्टली इन द विंड पाइप एरिया. दूसरे एरिया में ही मिलता है लेकिन यहाँ पे भी मिलता है इन द विंड पाइप एरिया. ओके, एंड व्हाट इज द वर्क? लेट अस सी द वर्क. नाउ जस्ट अ मिनट. नाउ दिस is the trachea, this is the windpipe. Okay, ये है windpipe. अब ये windpipe के एरिया में you can find the ciliated columnar epithelium. So now what is the work over here? Now this, when you are breathing in air, जरूर नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, उसके साथ साथ बाकी के गैसेस भी आते हैं एंड बाद में जर्म्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, पॉल्यूटेंट्स है, वो सब भी अंदर आते हैं. We do not require such substance, we only require oxygen. So जो dust particles है, जो germs है, जो pollutants है, उसको बाहर निकालना important है, which is done by ciliated epithelium. Now what happens is, the ciliated epithelium, as I told you, has hair-like structure. They have cilia. तो ये cilia के ऊपर जो भी dust particles है या फिर जो भी pollutants है, वो stick हो जाता है, वो चिपक जाता है. उसके ऊपर क्या होता है? ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, इफ यू लुक वेरी क्लियरली ओवर हियर, यू हैव सर्टेन पर्पलिश सेल्स ओवर हियर जिसको हम बोलते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स. ये निकालता है म्यूकस. ओके, म्यूकस वी ऑल नो द स्टिकी सब्सटेंस, राइट? अब ये जो स्टिकी सब्सटेंस है उसके ऊपर भी जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे. एंड नाउ व्हाट द सीलिया विल डू, जो आजू बाजू का सीलिया है, it is going to push them in the upward direction, matlab towards the nose. So it is going to push the germs and the pollutants in the upward direction, forward direction, and hence it helps to clean the respiratory tract. Okay, again I'm repeating. The ciliated epithelium, okay, has cilia which helps to trap the germ particle, the dust particle which enters along with the inhaled air.
यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, वी डू नॉट रिक्वायर अदर पार्टिकल्स। सो व्हाट हैपेंस इज, जो आजू बाजू के जो सेल्स है, जो है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, जो सीलिएटेड कॉलम के आजू बाजू होते हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज म्यूकस। As the mucus is released, mucus is a sticky substance, चिपचिपा सा पदार्थ है वो sticky substance के ऊपर जो भी germs है या फिर जो भी dust particles है वो stick हो जाएंगे as the person is inhaling and exhaling air, and then the cilia are going to push that mucus along with the germ and the dust particles in the forward upward direction towards the nose, so that that whole respiratory tract is cleaned. तो इन शॉर्ट वो झाड़ू मारने का काम करता है वहां, ठीक है। सो हेंस इट पुशेस द म्यूकस एंड द एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। दिस इज द वर्क ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। आई होप समझा हो। डाउट्स है अगर तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट एपिथेलियल टिश्यू जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Now, if you look at the image of cuboidal epithelium, you can see it is completely cube shape. आइस की तरह है वो, नॉट आंखों वाली आइस, वो बर्फ बर्फ वाली आइस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो इट इज क्यूब शेप इन स्ट्रक्चर, इसलिए इसको नाम दे दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये ऐसे तो अलग अलग जगह में मिलते हैं। यहाँ पे देयर आर टू लोकेशंस गिवन। वन इज द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी and another that is called as nephron, and you have learned about nephron, so you know what is a nephron. And second is the salivary gland. तो ये दो जगह पे यहाँ पे लोकेशन दिया गया है जहाँ पे यू फाइंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वन इज द किडनी ट्यूब्यूल दैट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड अनदर इज द सलाइवरी ग्लैंड। ओके, द सेल्स आर क्यूबॉइडल, तो वो हमें शेप में समझ में आ गया। अब जहां वो प्रेजेंट है उस हिसाब से उसका फंक्शन होगा। तो पहले हम किडनी की बात करते हैं। किडनी हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव यूरिन। तो वो ब्लड को फिल्टर करेगा, उसका जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है वो यूरिन में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन द किडनी इज फिल्टरिंग ब्लड, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए वो भी यूरिन का पार्ट बन जाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, it's a big process of forming of urine. यूरिन बनाने के बड़े बड़े स्टेप्स है। तो उसमें स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है कि गलती से द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज है, ओके, देन प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स है, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, सॉल्ट्स है, विटामिन है, वो भी गलती से चले जाते हैं इन द यूरिन। अब ऐसा यूरिन तो हम बाहर फेंक नहीं सकते बिकॉज दिस यूरिन हैज यूजफुल प्रोडक्ट एज वेल। So we have to do something. मतलब we मतलब the cells. So what does the cuboidal epithelium do over here? The cuboidal epithelium of the nephron of the renal tubule is going to absorb. Yeah, it's not. It's going to reabsorb. It's going to reabsorb all the useful material from the urine. Okay, तो अगर हम नेफ्रॉन को देखें, यहाँ पे this is the nephron, of course you must have, you know this. Okay, so over here ये जो पूरा है ना, this is complete renal tubule. This whole renal tubule. Okay, again यहाँ पे पर्पल, देन अगेन ये पूरा, एंड देन अगेन ये ऊपर वाला, ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल है। तो ये रीनल ट्यूब्यूल में जैसे जैसे यूरिन आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। तो यहाँ के जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो धीरे धीरे ऑल यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, एंड देन जो सुसु जो यूरिन निकलता है वो है 100% सुसु, एनी मिलावट नहीं होता है, विदाउट एनी मिलावट। Okay, it is 100% urine. Did you get that? Okay, so again, cuboidal epithelium, reabsorption of useful material from urine, ये हुआ उसका फर्स्ट फंक्शन, बिकॉज वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। अब दूसरा वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, टू रिलीज सलाइवा, so hence it will help in the secretion of saliva. So hence how to remember the function, location के ऊपर उसका function depend करता है। So you need to understand the location as well as the function, दोनों connected है एक दूसरे से। Okay, again last time repeat कर रही हूँ मैं function cuboidal का। It is present in the kidney tubules, helps to reabsorb all the useful materials from urine, and then the urine is thrown out of the body. Okay, and second, it is present in the salivary gland, helps to secrete saliva. Okay, I hope यहाँ तक clear हो गया।
Let us go ahead now. In your textbook, you have a small question. I'll just open your textbook. Just a minute, student. In your textbook, you have a question, or you use your brain power. What are epithelial? Why are the epithelial tissues said to be simple tissue? Can you please give me the answer in the chat box? Why are the epithelial tissues said to be simple tissue? The answer is because it is made up of only one type of cell. That is the right answer. Okay, there are few people who have given me the answer. So it is called as a simple tissue because it is made up of only one type of cell. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now the next we are going to go with the complex tissue. What is complex tissue, students? Yes, it is made up of more than one type of cell. तो उसमें हम शुरू करेंगे with the first complex tissue जिसका नाम है connective tissue. Okay, let's start with the screen share. Okay, now the connective tissue contains two parts. ध्यान से सुनना ये पार्ट को. ओके, आगे बहुत यूज होगा इसका. एवरी कनेक्टिव टिश्यू, हम 8 कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, 8 टाइप्स. एवरी कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स टू पार्ट. One is called as the cell, okay, and second is called as the ground substance. Again repeating, every connective tissue contains two parts. One is called as cells and another is called as ground substance. Okay. Now, when the word comes connective tissue, it means it connects different parts of the body. So that is the word. Okay, that is the actually work of the connective tissue. इसलिए उसको नाम ही दे दिया है connective tissue. It tissue which joins different parts of the body are called as connective tissue. ये उसका definition हो गया. उसके दो parts होते हैं, एक होता है cell और दूसरा होता है ground substance. Okay, और ये ground substance के अंदर तुम्हें cells मिलते हैं. So cells are present inside the ground substance. Okay, the ground substance can be of different types. They can be solid, they can be liquid, they can be jelly like. Okay, but cells हमेशा solid होता है. They cannot be liquid or jelly. Okay, so cells are solid and ground substance, depending upon the type of connective tissue, they can be either solid, liquid or jelly like. I'll give you an example. मैं अगर blood की बात करूं तो blood is liquid. तो अगर वो लिक्विड है, ब्लड के पास भी खुद के सेल्स होते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड. तो वो सेल्स तो सॉलिड ही है, बट उसके पास जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो होता है लिक्विड, इसलिए ब्लड भी लिक्विड है. और यही ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ब्लड के सेल्स डूबे हुए हैं. आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर. ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ बोन्स की, देन बोन्स आर हार्ड. इफ बोन्स आर हार्ड, इवन द ग्राउंड सब्सटेंस हैव टू बी हार्ड. तो वो सिचुएशन में द ग्राउंड सब्सटेंस हैव टू बी सॉलिड, हार्ड. समझा? एंड देयर आर अदर कनेक्टिव टिश्यू एज वी गो अहेड यू विल कम टू नो. उसमें द ग्राउंड सब्सटेंस आर जेली लाइक, नॉट कंप्लीटली हार्ड, नॉट कंप्लीटली लिक्विड. ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर हुआ है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, connective tissue, okay, it contains two parts. One is cell and one is ground substance. And ground substance के अंदर cells डूबे हुए हैं. Depending upon the different type of connective tissue, you have 3 different types of ground substances. It can be either solid, liquid, or jelly-like. Now let's start with the different types of connective tissue. The first we're going to deal with is blood. Okay? Now blood is a fluid connective tissue, liquid state में, और वो पूरे body में घूमता है. Every part is covered by blood.
Then what is the location? The location is said to be closed circulatory system. Now, why it is said to be closed circulatory system? The reason is blood is a part of a circulatory system जो continuously body में continuously घूम रहा है. Okay? अब closed क्यों? Because हमारे body में the blood always moves in tubes. Okay? वो हमेशा ट्यूब के अंदर से जाता है. वो ट्यूब को हम बोलते हैं ब्लड वेसल. जैसे कभी नाम सुना होगा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ओके, ये 3 ब्लड वेसल्स है और वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड घूमता है. तो हेंस हमारे बॉडी में द ब्लड ऑलवेज मूव्स और ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज नेटवर्क. वो ट्यूब के अंदर से जाता है, राइट? इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे पाइप के अंदर से पानी जाता है, राइट? वो बाहर लीकेज नहीं होना चाहिए, तो पाइप के अंदर से पानी जाता है, वैसे ही यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड फॉर्म्स द लोकेशन ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब स्ट्रक्चर. As it is a complex connective, as it is a complex tissue, it should be made up of more than one type of cell. So hence, blood यहाँ पे it is made up of 3 types of cells. There are many cells, but there are of 3 types. One is said to be erythrocytes. Erythrocytes का दूसरा नाम है red blood cells, short form RBC. You can write it down. Erythro का मतलब होता है red and cytes का मतलब होता है cells. They are red blood cells. Okay. Leukocytes are white blood cells. Leukos is white and cytes again cells. So it's white blood cells. And then you have platelets. Okay, so you have 3 types of cells: erythrocytes, leukocytes and platelets, which are present in a ground substance. और वो ground substance का नाम है plasma, liquid plasma. Okay, so you have a liquid plasma, which is a ground substance, and there are different blood types, blood cells, which are, present in it. अगर कोई चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो कभी प्लाज्मा और सेल्स अलग अलग नहीं निकलते, साथ में निकलता है. क्यों? बिकॉज सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा इज अ ग्राउंड सब्सटेंस. तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया. फंक्शन. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. अभी पूरे बॉडी में वो घूम रहा है, तो कुछ काम कर ले. सबसे बेस्ट काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करना. यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज वहां. दैट इज अ वर्क इट कैन इजीली डू, राइट? तो ब्लड हैज मेनी मेनी फंक्शंस. देयर आर फ्यू लिस्टेड ओवर हियर. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ब्लड करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन. तो इट ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी. ओके, कुरियर बॉय की तरह यहाँ से वहां भागता है वो. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरे सेल्स को देगा. बाद में वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स. तो इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब ये लेके पूरे बॉडी में देगा. देन इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट. वेस्ट इज टेकन फ्रॉम द सेल्स एंड गिवन टू द किडनी बाय द ब्लड, ताकि किडनी उसको सुसु में बाहर फेंक दे. एंड देन यू हैव हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स तुमने पढ़े हैं 15 चैप्टर में. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. अगर तुम्हें याद ना हो तो प्लीज लिख लो. हॉर्मोन्स आर chemical substances. I hope you are writing it down. If you do not remember, please write it down. Hormones are chemical substances which helps in growth and development of the body. जैसे एक होता है ग्रोथ हार्मोन. ओके, सो वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है. सो वैसे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर. सो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इसको भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड. So this is the function of the blood. One of the function. There are many. One of the function is it transports the nutrients, oxygen, hormones and waste from one part of the body to another. ये हो गया blood. Clear. Next हम पढ़ेंगे lymph. Now this is a new word for you. जिसको अच्छे से समझना है. ठीक है? What is lymph? Lymph is also present all around the body like blood. ठीक है? और वो भी एक पर्टिकुलर वेसल में ही जाता है. बट ये बनता कहाँ से है? So let us understand that with a small image over here. Now if you can see very clearly, I have told you that there are blood vessels. Okay,
सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर्टरी जिसका नाम है आर्टीरियोल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर्टरी. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वेन जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल. तो ये है वेन्यूल, छोटे पार्ट, वेन का छोटा पार्ट, आर्टरी का छोटा पार्ट आर्टीरियोल. अब जब आर्टीरियोल डिवाइड होता है ना, देखो ये बहुत डिवाइड हुआ, तो बनता है वेरी थिन थिन कैपिलरीज. सो इट फॉर्म्स थिन कैपिलरीज. मैं रेड की बात कर रही हूँ, रेड और ब्लू वाले, नॉट ग्रीन. तो जो थिन थिन कैपिलरीज बनती है और यही कैपिलरीज ज्वाइन होके बनता है वेन्यूल. सो अंडरस्टैंड द सिनेरियो ओवर हियर. आर्टीरियोल will divide and divide to form capillaries which will again join to form venule. I hope समझा यहाँ पर. Okay, again arteriole will divide to form capillary which will join to form venule. Now what happens, if you can look very clearly, तुम्हें ना यहाँ पे छोटे छोटे cells दिखेंगे. You can see यहाँ पे छोटे छोटे cells है येलोइश कलर में. अब हमारे पास ना बहुत सारे सेल्स है, वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, और वो सबको खाने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको सबको. अब इतना छोटे छोटे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसके लिए जब ब्लड वेसल को भी थिन होना पड़ेगा, तभी वो हर एक सेल के पास पहुंच पाएगा. जैसे वी हैव हाईवेज, द हाईवेज डू नॉट रीच आवर होम. हमारे घर क्या पहुंचता है, गली, गली गली में घर आता है, राइट. तो वैसे ही कैपिलरीज आर स्मॉल स्मॉल गली, जो हर एक सेल्स के पास पहुंचेगा. ओके, और वहां पे वो क्या करेगा, इट विल रिलीज फ्लूइड. कैपिलरीज में स्मॉल स्मॉल गैप्स होता है. सो द कैपिलरीज हैव स्मॉल स्मॉल गैप्स, और ये जो गैप्स है ना, वो गैप्स में से ओनली द प्लाज्मा कैन कम आउट. द गैप्स आर नॉट वेरी बिग, दे आर स्मॉल. तो उसमें से ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ पाते. ओके, द प्लाज्मा कैन कम आउट. As the plasma comes out, it gathers around the cells. Cells के आजू बाजू वो गैदर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. Again I'm repeating, the capillaries have small pores जिसमें से only the plasma can come out and it gathers around the cell जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. अब ये टिश्यू फ्लूइड मतलब ये प्लाज्मा में सब न्यूट्रिएंट्स है, सब ऑक्सीजन है, तो वो सब कुछ वो सेल अब्सॉर्ब कर लेता है. ओके, वो उसको वो मिल गया. अब क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, उसको फिर से ब्लड के पास पहुंचना है. सो द टिश्यू फ्लूइड विल नाउ एंटर अनदर कैपिलरी व्हिच इज इन ग्रीन कलर. ये कैपिलरी का नाम है लिम्फ कैपिलरी. ओके, एंड जैसे इट एंटर्स द लिम्फ कैपिलरी, द फ्लूइड इज नाउ कॉल्ड एज लिम्फ. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द फ्लूइड व्हिच केम आउट from the blood, that is plasma which came out from the blood, has to again reach the blood. या फिर ऐसे तो पूरे बॉडी में प्लाज्मा कम हो जाएगा अगर वो हर बार निकलता ही रहा कैपिलरी में से. तो ओके, तो उसको फिर से ब्लड तक पहुंचना है. तो अब क्या होगा, ये जो टिश्यू फ्लूइड है जो प्लाज्मा टिश्यूज के बीच में है, वो एंट्री मारेगा इनटू अ लिम्फ कैपिलरी व्हिच इज इन ग्रीन कलर, एंड नाउ दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ. आई होप क्लियर हुआ. याद रखना, लिम्फ में प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स नहीं होते, बट एक ब्लड सेल हो सकता है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. द रीजन इज व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. सो नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, तो अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो धीरे धीरे अपने आप को बाहर फ्यूज करके बाहर निकाल सकते हैं. दे विल ऊज ईच आउट. ओके, दे विल गो आउट, और वो ऐसे बाहर निकल जाएंगे, दे विल कम आउट ऑफ द कैपिलरी. बाकी के जो आरबीसीज है और प्लेटलेट्स है, दे कैन नॉट एंटर. बट इवन इफ द होल इज वेरी थिन ना, स्टिल द डब्ल्यूबीसी विल स्क्वीज इटसेल्फ आउट. इसलिए तुम्हें ये जो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड में प्लाज्मा तो मिलेगा ही, साथ में तुम्हें डब्ल्यूबीसी भी मिलेगा, दैट इज ल्यूकोसाइट. अब इसका बेनिफिट क्या है, कभी कभी जर्म्स है ना, जर्म्स दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट. वो लोग ब्लड में नहीं आएंगे, वो लोग टिश्यूज के बीच में छुप छुप जाएंगे और वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन दे कैन कॉज डिजीज. ओके, सो व्हाट हैपेंस, अगर डब्ल्यूबीसी ये टिश्यू के फ्लूइड में आ गया, लिम्फ में आ गया, तो ये डब्ल्यूबीसी ना चुन चुन के ये सब जर्म्स जो छुपे हुए हैं ना कहीं, उसको मार डालता है. हेंस इट डज नॉट cause any disease, it will prevent disease because जो germs है उसको वो मार डालता है. So this is the use of the WBC present in the lymph. So I hope समझा हो अच्छे से what is lymph. Okay, lymph is a liquid which is plasma plus WBC
which is coming out from the blood capillaries, and it gathers around the tissue, and then it enters a lymph capillary, which is, then this fluid is called as lymph. lymph में जो WBC है वो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिजीजेस, इट किल्स द जर्म्स, और lymph के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल को मिल जाता है फॉर इट्स यूज. ठीक है, सो दिस इज अबाउट lymph. so lymph का स्ट्रक्चर इज फ्लूइड oozing out. oozing का मतलब कमिंग आउट. fluid which is coming out of blood capillaries contains leukocytes and liquid ground substance, and function is protection of body from infection. ऐसा WBC काम करता है. उस वो lymph में दो चीज है, एक है WBC और दूसरा है ground substance, that is plasma. Okay, clear? We'll go with the next one जिसका नाम है areolar tissue. Now the areolar tissue का दूसरा नाम लिख दो वहां पे ही, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में. The areolar tissue का दूसरा नाम है loose connective tissue. Okay, इसका नाम है loose connective tissue. If you can look at the structure, you can see the cells are very loosely arranged. Okay, they are very loosely and away from each other. Hence, structure पहले पढ़ते हैं. The different type of cells are loosely arranged and they are supported by a jelly-like ground substance. तो यहाँ पे you have a jelly-like ground substance. ये दोनों में liquid था ground substance, यहाँ पे है jelly-like ground substance. And also contains elastic fibers, जो हमें elasticity देता है, flexibility देता है. कहाँ मिलता है एरियोलार? वो मिलता है स्किन और मसल्स के बीच में, एंड अराउंड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स के आजू बाजू, एंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स यू फाइंड एरियोलार टिश्यू. लेट अस हैव अ लुक. So if this, एक मिनट, यस, दिस इज अ स्किन, ये उसका अपर लेयर है. अब यहाँ पे इफ यू कैन लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो दिस एरिया कंटेन्स एरियोलार टिश्यू, और ये मसल्स है लास्ट वाला. तो मसल्स और स्किन के बीच में you can find the loose connective tissue or the areolar tissue. If you zoom it, ये area दिखेगा तुम्हें. So this is the loose connective tissue which contains many cells and it contains elastic fibers. ये elastic fibers से क्या होता है? मिलता है elasticity. Okay, it gives elasticity. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्किन को खींचते हो, चीक्स को ले लो या कोई भी ऑफ द स्किन का पार्ट अगर तुम खींचते हो, एज यू लूज इट, एज यू लीव इट, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, राइट? दैट इज इलास्टिसिटी गिवन बाय एरियोलर टिश्यू. So it gives elasticity to the skin. So if someone pulls your cheeks or your skin, as a person loses or leaves it, the skin goes back to original position. Okay, अब function क्या है उसका? Function है it supports internal organs. तो जो अंदर के ऑर्गन्स है उसे वो समवॉट सपोर्ट करता है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एरियोलर टिश्यू. So now we are done with 3 types. We'll do a thing. First, we'll clear some doubts. If time is there, then we'll go ahead, or we'll stop the session. Okay, the function of ciliated epithelium, again I'm repeating, it has cilia. Okay, वो क्या करता है? It traps the germ particle and the you can say dust particles, इसको वो ट्रैप करता है. उसके आजू बाजू होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, जो म्यूकस निकालता है. तो म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है, उसके ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स आ गया तो डस्ट विल स्टिक ऑन इट. नाउ द सीलिया इज गोइंग टू पुश द म्यूकस along with the dust particles in an upward direction, in the forward direction, okay, towards the nose, so that the whole area, the whole respiratory tract is clean. It removes the germs and the dust particles from the respiratory area. Nephron is a unit of kidney. Kidney का काम है to filter the blood and produce urine. That work is done by nephron. So nephron is the structural and the functional unit of kidney. Kidney में बहुत millions and millions of nephron होते हैं.
तो वो सब नेफ्रॉन दिन रात सिर्फ एक ही काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं. ओके. Yes, even cuboidal epithelium is a semi-permeable membrane because it allows only the important materials to enter and the harmful chemicals are not entered. Yes, hormones are secreted through endocrine glands. Okay, not every WBC or plasma enters the lymph. ठीक है, because as I told you, capillaries में holes बहुत ही thin होते हैं. So only few amount of plasma and WBC is going to enter the lymph. And for your information, WBC majorly lives in the tissues. वो blood में कम रहते हैं और tissue में ज्यादा रहते हैं. Okay, now the areola tissues जो होते हैं, okay, how does it support the internal organs? It is surrounding them. So as I told you, वो स्किन के नीचे है, तो जो भी ऑर्गन्स है उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, तो उनको डैमेज नहीं होता. ठीक है, तो इट सपोर्ट्स देम इन सच अ वे कि अगर कोई गिर विर गया तो उसको ऑर्गन्स को डायरेक्ट डैमेज नहीं होगा, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स है. दैट इज द वे हाउ इट सपोर्टेड. कॉलमनार टिश्यूज आर रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वो, बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिक्वायर कॉलमनार टिश्यू. दे आल्सो रिलीज सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस. बाकी भी है पार्ट्स जो निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, बट ये भी जो ये जो कॉलमनार सेल्स है वो जो डाइजेस्ट जूस निकालते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंप्लीट डाइजेशन. सो हेंस कंप्लीट डाइजेशन कैन नॉट बी डन विदाउट कॉलमनार टिश्यू. Ciliate columnar epithelium are located in the respiratory area, that is your windpipe, then your other respiratory parts. Nephron is not a cell. Nephron is a structure which contains many cuboidal epithelium cell. So cuboidal epithelium is a cell, वो बहुत सारे होते हैं जिससे बनता है nephron. Salivary glands are those glands which will release saliva. हमारे माउथ में कंटिन्यूसली सलाइवा थूक निकलता रहता है, राइट? दैट इज डन बाय द salivary glands. Columnar epithelium are long cells which are present in the intestinal area and the other digestive area. They help to do two function. एक वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूस, जिससे डाइजेशन होगा और हमारा फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा. एंड बाद में वो वही न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है ताकि वो वहां से पूरे बॉडी में फैल जाए थ्रू ब्लड. आई हैव नॉट सेट द पेपर. I just answered your question, Sahil. Without columnar tissue, digestion cannot be done properly. Nephron is not a cell. Again and again I'm repeating. मैंने तुम्हें बोला nephron is a structural and the functional unit. It is not a cell. It is a structure. Clear है? और nephron is a structure जिसके अंदर बहुत सारे cells होते हैं, which is cuboidal epithelium. ठीक है? So I suppose we still have time. We'll go ahead with one more. ठीक है? Let us go ahead.
The other name of areolar tissue is loose connective tissue. Okay. Now, the one more will go. Next one is adipose tissue. Adipose tissue जो है वो स्टोर करता है फैट, तो इट स्टोर्स फैट, और वो कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स. तो अगर तुम यही इमेज को देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हें ये जो दिख रहा है ना, दीज आर फैट सेल्स. ओके, और ये जो फैट सेल्स है, दीज आर नथिंग बट एडिपोज टिश्यू. तो ये स्किन के नीचे है, स्किन के नीचे यू कैन फाइंड द एडिपोज टिश्यू. ओके, नाउ these are again the same thing. This is the skin. If you zoom it, एंड ये स्किन के जगह ये जो पूरा येलो एरिया है, दैट इज एडिपोज टिश्यू, एंड ये उसके सेल्स है which contains fat. So hence the cells are filled with fat droplets and you have jelly like ground substance. तो यहाँ पे भी जो ground substance है वो jelly like होता है. अब कहाँ कहाँ मिलता है fat? It is below the skin and around internal organs. Kidneys के आजू बाजू, liver के आजू बाजू, you find small layers of fats. Okay, it is important. It gives them a cushion like structure. अब इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन इंसुलेशन. तो हीट को ट्रैप करके रखता है हमारा फैट, एडिपोज टिश्यू, विच इज रिक्वायर्ड इन नॉर्मल अमाउंट. सी, अगर लोग ज्यादा मोटे हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज टू मच हीट इज ट्रैप्ड एंड देन द हीट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इसलिए इनको स्वेट बहुत ज्यादा होता है. ओके, नॉर्मल लेयर ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड सो दैट नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रैप्ड विच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फंक्शन इन द बॉडी. So it is an insulation. It helps to supply energy. Okay, fats can be broken down to produce energy and it helps in the storage of fats. So again, I'm repeating. Adipose tissue helps in insulation. तो वो क्या करता है? It stores, it does not allow the heat to pass. Because of that, अगर small amount है फैट का, then it is good. अगर बहुत ज्यादा फैट है, और अगर ज्यादा फैट है तो वो of course इंसान मोटा होगा, okay, फैटी होगा. So what happens is it does not allow heat to pass through the skin, and because of that the heat is inside the body, जिसके वजह से बाद में heat sweat के फॉर्म में बाहर निकलता है. Okay, and अगर normal fat का layer है, then it is good because that much amount of heat is required to be trapped in the body, which is trapped by the fat, so that the body function can be easily done. It helps to break down. अगर समझो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फैट्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स. ठीक है, तो हम लोग ने आज 4 क्लियर किए हैं. इसके जो भी डाउट्स है अगर, तो हम लोग वो नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे एज वी गो अहेड. विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू एवरीवन.